Hello students, I welcome you in this e-class on the topic coordination compounds. So in the past lecture we went through the postulates given by Werner. So what were the postulates? कि जो है most of the elements they exhibit two types of valencies, primary valency and secondary valency, and we know that every elements they tend to satisfy both primary valency and as well as the secondary valency. And what was the second postulate? That primary valencies are ionizable and primary valency जो है they are satisfied by negative ions only, and it corresponds to the oxidation state of the central metal atom. ठीक है ना. और ये प्राइमरी वैलेंसीज जो होती हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, ये हमने पढ़ा था. नाउ व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? दैट सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल or they can be satisfied by negative ions or neutral molecules. So in modern terminology it corresponds to coordination number, now we know, and it is directional in nature. And the secondary valencies जो होती हैं वो they are directed towards fixed position in space. तो and this is the basis for the stereochemistry of various metal complexes. तो ये हमने पढ़ा था. Now today we will focus on the experimental evidences for the verification of this theory, Werner's theory. तो फर्स्ट लेक्चर में भी आई गेव यू अबाउट द प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट. तो ये कि with reference to these postulates Werner explained the bonding in complexes. ठीक है ना. तो बिकॉज जो कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ cobalt chloride and amine. So here in the table the complexes and the number of chloride ion precipitated on addition of silver nitrate they have been shown. ठीक है. So as you can see in the first complex number of chloride ion precipitated are 3, and then in the next they are 2, and with the 4 ammonia molecules the complexes in the complex the chloride ion precipitated are it is 1 only, and in the last complex that is CuCl3 3NH3 no chloride ion was precipitated, and the complexes जो हैं they have been formulated as per the last column in this table. ठीक है. तो क्या हुआ कि on addition of a solution of silver nitrate a freshly prepared solution of cobalt chloride with 6NH3 molecule complex results in the immediate precipitation of all the 3 chloride ion as shown here with in the equation. ठीक है ना. तो 3 सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, and the primary valency or the oxidation state of cobalt is +3. ठीक है. और जो ये 3 क्लोराइड आयन है दे सैचुरेट दी प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है ना. जो कि आयनाइजेबल क्लोराइड आयन है दे आर शोइंग दी प्राइमरी वैलेंसी, एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कोबाल्ट 3 इज 6. देयर आर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू दी सेकेंडरी वैलेंसीज. तो ये सेम एक्सपेरिमेंट जब 5 अमोनिया मॉलिक्यूल वाले कॉम्प्लेक्स में किया गया तो इट कॉजेज द इंस्टेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ओनली 2 क्लोराइड आयन. ठीक है ना. ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में. तो वर्नर डिड दिस इन अकॉर्डेंस टू पोस्टुलेट 1 which states that both the primary and secondary valency they tend to be satisfied. ठीक है ना. by each and every metal atom. तो therefore 1 chloride जो है in cobalt complex with amine 5 अमोनिया मॉलिक्यूल जिसमें है there are only 5 ammonia molecules to satisfy the secondary valency. Therefore 1 chloride ion must serve the dual function of satisfying both the primary as well as the secondary valency. ठीक है ना. एक क्लोराइड आयन जो है दोनों को डुअल फंक्शन रहेगा उसका टू सेटिस्फाई द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी वैलेंसी. तो इसको क्या है
एज अ वर्नर ने एक सॉलिड लाइन और एक डैश लाइन, डॉटेड लाइन, है ना, दोनों से प्रेजेंट किया था एज शोन हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो देखिए आप, जो ऊपर वाला क्लोराइड एटम है वह डुअल फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट हैज़ बीन शोन बॉन्डेड टू द कोबाल्ट एटम बाय डॉटेड लाइन एज वेल एज द सॉलिड लाइन। ऐसे ही जिसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 4 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, वर्नर डिड्यूस दैट 1 chloride ion formed, it formed a primary valency and there were 6 secondary valencies। क्या 2 क्लोराइड आयन है जिसमें, और 2 क्लोरीन एटम है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +6 इन दिस केस, है ना, एंड 4 अमोनिया एंड 2 क्लोराइन एटम जो हैं, क्लोराइड आयन जो हैं, दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू कोबाल्ट +3। तो स्ट्रक्चर जो है इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की, दे मे बी रिटर्न इन 2 ways, cis form as well as the transform, as you can see on the screen. Cis form is of violet color and transform is of green color. Now we come to the last compound COCl3 3NH3 जिसमें 3 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें no chloride ion is precipitated on addition of silver nitrate। तो here its formula has been given here on the screen। तो देखिए सारे के सारे जो क्लोरीन एटम्स हैं, they are serving dual purpose of satisfying both primary as well as the secondary valency, जिसमें कि हमने इनको डॉटेड लाइन एज वेल एज दी थिक लाइन से शो किया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाउंड sufficient experimental evidence for the success of Werner's coordination theory. Okay, now we come to the second evidence, that is molar conductivity experiments. So these type of experiments, they provide useful information about the number of ions present in solution of different complexes. देखिए जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उतना ही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो this type of information was obtained for a several series of complexes which have been shown here on the table with the platinum complex, platinum amine complexes। तो देखिए कि results they show that as the number of ammonia molecules in the compound decrease, the number of ions they also fall to 0 and then increased again in the last complexes shown here। ठीक है ना, तो वर्नर थ्योरी जो है, इट डील्स स्पेसिफिकली विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इट वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर को समझाने में यह सिद्धांत काफ़ी सफल रहा। ठीक है, देखिए बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, the configuration of molecules were determined by comparing the number of known isomers, है ना। isomers क्या होते हैं, जो कि compounds which are having same formula but different structures। तो by this method it was possible to prove that certain structures were not correct and to obtain evidence in support of a particular configuration। तो जो है वर्नर वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, दे हैव एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। उनकी संरचना जो है वह अष्टफल की होती है। नाउ हाउ डिड इट स्टार्ट? तो मेथड जो है, इट स्टार्ट्स विद द assumption that a 6 coordinated system has a structure in which 6 ligands are situated at positions symmetrically equidistant from the central metal atom। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम से जो है सिमेट्रिकली इक्विडिस्टेंट हों 6 लिगेंड्स। तो ऐसा किन किन स्ट्रक्चर्स के लिए पॉसिबल हो सकता है? एक तो ये प्लेनर हेक्सागोन, second trigonal prism, and third is octahedron which have been shown here on the screen। ठीक है ना, तो
वर्नर जो है देन कंपेयर द नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स ही हैड ऑब्टेन विद द थियोरेटिकल नंबर फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल शेप्स. ठीक है, such a comparison shows that for the second and the third compound which is shown here in the table, the planar and the trigonal prism structure predict that there should be 3 isomers. देखिए आप टेबल में जो प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो थियोरेटिकली इट एज्यूम्स पहले कॉम्प्लेक्स के लिए तो 1 है, Ma4 B2 के लिए 3 और Ma3 B3 के लिए भी 3. ऐसे ही ट्रायगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर भी Ma5B के लिए 1 है आइसोमर, Ma4B2 के लिए 3 है और Ma3B3 के लिए भी 3 है. जबकि जो ऑक्टाहेड्रल है वो पहले कॉम्प्लेक्स के लिए 1 बता रहा है, दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए 2 बता रहा है, तीसरे कॉम्प्लेक्स के लिए भी 2 बता रहा है. ठीक है, तो जो है प्लेनर और ट्रायगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर तो दे आर प्रिडिक्टिंग दैट देयर शुड बी 3 आइसोमर्स, जबकि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज टाइप्स वर फाउंड टू एग्जिस्ट ओनली इन 2 फॉर्म्स, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ आइसोमर्स थियोरेटिकल पॉसिबल फॉर एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये जो रिजल्ट्स हैं दे स्ट्रांगली सजेस्ट दैट दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव एन ऑक्टाहेड्रल शेप. ठीक है, तो अब तो ये प्रूफ भी मिल गया है थ्रू एक्सरे स्टडीज़. पहले तो हम कह सकते थे कि देयर वर नॉट सफिशिएंट और करेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल दीज आइसोमर्स. लेकिन अब तो एक्सरे स्टडीज़ ऑल्सो थ्रू द एक्सरे स्टडीज़ रिजल्ट्स हैव एस्टेब्लिश्ड दैट द शेप इज़ ऑक्टाहेड्रल. ठीक है ना. ऐसे ही वर्नर जो है ही स्टडीड अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस of the amine complexes of palladium and platinum. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इनका पैलेडियम का प्लेटिनम का 4 है ना. तो शेप क्या होना चाहिए, इधर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. वर्नर वॉज एबल टू प्रिपेयर 2 डिफरेंट आइसोमर्स फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो केवल एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो यानी कि ये क्या सजेस्ट करता है कि जो है these complexes of palladium and platinum with ammonia, यानी कि amine complexes of these platinum and palladium they exist as square planar structure rather than tetrahedral. ठीक है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है लेकिन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है they exhibit instead of tetrahedral. तो in this way molar conductivity experiments and various other experiments were able to prove the success of Werner theory. उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट्स और हुए जिसमें कि experiments were done with sulfuric acid as well as the other HCl with HCl. तो जैसे कि HCl हम जानते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स देता है ना. तो इन जब कॉम्प्लेक्सेस को हम HCl के साथ गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर तक यानी कि 110 तक जो है भी इनमें से अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल पाते हैं. तो व्हाट इज सजेस्टेड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट्स कि अमोनिया है और अगर वाटर मॉलिक्यूल है इन कॉम्प्लेक्स में तो ये कोबाल्ट एटम के साथ जो है वह सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना. क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जो लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं वे दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द मेटल एटम. ठीक है. ऐसे ही हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं इन कॉम्प्लेक्सेस की तो आपको पता है कि आयनिक क्लोराइड है, आयनाइजेबल जो क्लोराइड है वो तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे. तो जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएगी तो जो अमीन कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट का जिसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल थे उसमें तो तीनों क्लोराइड आयन निकल गए और 4 अमोनिया के वाले कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही क्लोराइड आयन HCl के रूप में बाहर निकल गया. और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे जिस कॉम्प्लेक्स में उसमें HCl तो बना ही नहीं. तो जो भी क्लोरो ग्रुप्स पीछे रह गए इसका मतलब यह है कि वह सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा मेटल एटम से जुड़े हुए हैं. देयरफॉर दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, है ना.
जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी से जो जुड़े हुए क्लोरीन आयंस थे, क्लोराइड आयंस से, वह आसानी से लिबरेट हो गए। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे कि वर्नर्स पोस्टुलेट्स को जो है सफलता मिली। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग effective atomic number concept and all. Till then, goodbye.